हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? यू आर लुकिंग एट योर सिलेबस, मेन सिलेबस, कनेक्टिंग यू विद द हिंदू, solving previous year question paper no matter what, and practicing some of the practice questions based on whatever you read every day. As I say, reading is like a waste of time. It's like reading without practicing is like eating without digesting. तो जो भी आप पढ़ें उसको practice करें so that you can digest and you can incorporate all the information properly in your mind. Okay, so let's begin with this simple reminder every day which I give you without fail. Let's begin our daily newspaper analysis discussion, and we are discussing the Hindu newspaper of Delhi edition every day. So, and whatever content which I show, I have informed you earlier also. Just a reminder, if you have not gone through the earlier information, this entire handout along with questions which I give you and some of the questions which I discuss in the class is available on the Telegram channel of Tathastu ICS. You can go there and you can join that, and you can download these extra readings and extra content which I give you, and you can practice the questions which are given in the sheet. Okay, so let's take the first article, and that is Skyroot Aerospace successfully test fires stage 2 of Vikram 1 launch vehicle in AP's Sriharikota. So this article is important for your GS paper 3. ठीक है, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस. अगर आप अपना सिलेबस में देखेंगे, दिस हैज बीन मेंशन एज इट इज. सो you can go and read from there and look at the articles. Okay, now let's read the article. What is Vikram 1? That we'll see. Leading space tech company Skyroot Aerospace. So what is Skyroot Aerospace? It's a startup and it is developing test Vikram 1. That is what is that? It has successfully test fired stage 2 of its Vikram 1 launch vehicle. So what is Vikram 1? This is a launch vehicle. Okay, we are reading about Vikram 1. It has been successfully the test stage 2. So Vikram 1 is a multi-stage launch vehicle, and now stage 2 has been successfully test fired by who? By Skyroot Aerospace, and this is a startup. This is a startup. Okay, so and it has been done from where? Satish Dhawan Space Center. Where it is? It is in Andhra Pradesh. So all this information you should see if you are appearing for state pieces. Other state pieces, they give where this the options are given to match, like Satish Dhawan Space Center is in Sriharikota or wherever. Launch vehicle comprise multiple stage 2 called Kalam 250. So they have been the stage 2 has been given a name, and what is it? It is a Kalam 250. You can again take this as a PT pointer, or ye 3 stage multiple jo stages hai, that is solid fuel based. This launch vehicle has a 3 stages, and all the 3 stages are solid fuel based. So second stage has been successfully test fired. So this is the information from the news, and again since it will propel this rocket, तो second stage जो है वो उसका function क्या है? It will propel the rocket through the Earth's atmosphere and into vacuum of the space. The Vikram 1 launch vehicle will be landmark event for the Indian space sector, as it will be country's first private orbital rocket launch. So क्या है? ये first private orbital launch rocket launch है. So that is why it is important. Next information, the Kalam 250 is a high strength carbon composite rocket motor which uses solid fuel. तो solid fuel based है. A high performance ethynyl propylene dyne terpolymers, ये आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं. solid fuel based है, ये आपको याद होना चाहिए. So this is the information. The solid propylene in Kalam 250 was processed by Solar Industries at their Nagpur facility. So this is the information that you have to take. Under it follows the suborbital launch of India's first private rocket. So next पहला क्या था? Vikram S by Skyroot in 2020. तो 2022 में इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट जो लॉन्च हुआ था, it was done by Skyroot. Its name was Vikram S. The latest, it is Vikram 1, and Vikram 1 का second stage has been test fired successfully. So this is the information from the newspaper. Now we are going to see some of the additional information and some of the PYQs or some of the practice questions which you can see. तो Vikram 1 क्या है? Vikram 1 जो है, that is been named after Vikram Sarabhai, the father of India's space program. तो another information,
who is the father of India space program? Vikram Sarabhai is a multi-stage launch vehicle with a capacity to place around 300 kg of payload in low earth orbit. तो आपको पता होना चाहिए लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, दैट विल सी सब्सिक्वेंटली, बट हियर यू वांट टू नो अबाउट विक्रम 1 एंड दैट नाउ वी आर क्लियर. It has been built by Hyderabad-based Skyroot Aerospace. It's a space startup that we already saw. Being a solid fuel rocket, that again we saw. It is an all carbon fiber bodied rocket, that also we saw from the article. ठीक है, तो this is all about Vikram 1 rocket. Low Earth orbit क्या है? Low Earth orbit की जो altitude है that is 1000 kilometer, but could be as low as 160 kilometer from above the Earth surface. मान लो Earth है, ये सेंटर है, अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ से 160 किलोमीटर जो इसकी रेंज है 160 किलोमीटर भी प्लेस दिया जा सकता है, 1000 किलोमीटर तक भी किया जा सकता है. दिस इज लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है, अ लो अर्थ ऑर्बिट द नेम सजेस्ट एन ऑर्बिट दैट इज रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस. ठीक है, रेंज ऑल्टीट्यूड देख लिया. बाय कंपैरिजन मोस्ट कमर्शियल एरोप्लेन्स, तो कमर्शियल एरोप्लेन्स do not fly at altitudes much greater than approximately 14 kilometer. So even the lowest low earth orbit is more than the 10 times higher than that. So जो commercial aeroplanes जो आप aeroplanes में fly करते हो, they fly within 14 kilometer beyond the earth surface. तो but जो ये हमारे low earth orbit है, that is almost 10 times even than that. ठीक है, the majority of satellites are to be found in low earth orbit as is the international space satellite. तो international space satellite भी is placed in low earth orbit. That is another information for you. Next, what do you need to know is some of the question, try to practice, which I bring up here. What is the name of the second stage of Vikram 1 launch vehicle? क्या है Vikram 1 launch vehicle का नाम? That we already saw, Kalam 250. What is the purpose of Kalam 250 stage of Vikram 1 launch vehicle? इसका purpose क्या है? To propel the rocket through Earth atmosphere and to space. To provide thrust vector control of vehicle. To house a carbon ablative flex nozzle. To process solid propellant. So यहाँ ये it's a good question. अगर आपको आइडिया है तो बताइए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. किस जो कलाम 250 है, अगर आपने ध्यान से आप पढ़ते होगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, और इट इज इन योर आर्टिकल दैट वी डिड हाईलाइट. इट विल प्रोपेल द रॉकेट थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इनटू द वैक्यूम ऑफ द स्पेस. ये हमने पढ़ा था, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ था, इट विल प्रोपेल द रॉकेट थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इनटू द वैक्यूम ऑफ द स्पेस. तो इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए. तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए, जो कि क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट आर्टिकल में ही पढ़ा था. वेयर वॉज द फर्स्ट टेस्ट फायरिंग ऑफ द कलाम 250 स्टेज ऑफ विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल कंडक्टेड? तो कलाम कहाँ था? अगर आपने ये भी पढ़ा होगा तो सतीश धवन सेंटर इन श्रीहरिकोटा, ये भी हमने देख लिया है. अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 2, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कोल इंपोर्ट्स. ये जीएस पेपर 3 में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर. देखो आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हो तो आपको लगता होगा कि ये आर्टिकल में क्या है. इवन व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी वर लुकिंग, व्हेन वी यूज्ड टू लुक एट द आर्टिकल्स, उस आर्टिकल में तब तक इंटरेस्ट नहीं आता था अनटिल अनलेस वी न्यू इट्स रेलेवेंस. रेलेवेंस कहाँ से पता चलता है? जब आप अपना मेंस का सिलेबस ओपन करके देखते हो. तो मेंस का सिलेबस अगर आप ओपन करके देखते हो तब उस आर्टिकल का आपको रेलेवेंस समझ में आता है कि क्यों पढ़ना चाहिए. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी, एक तो रेलेवेंस है कि क्या वो मेंस सिलेबस में जो भी यूपीएससी का सिलेबस है, द क्वेश्चन दैट आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन अगेन सेकेंड, if that particular article or whatever we read from newspaper or current affairs, is it related to our main syllabus? Second, if UPSC has asked question already, what kind of questions UPSC asks from those particular topics? So these 2-3 things you should know before you read something so that you can prepare accordingly. तो ये जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. तो आर्टिकल का समरी पढ़ने में बहुत बोरिंग सा है. अगर मैंने आर्टिकल का समरी बनाया हुआ है, अगर आप आर्टिकल की समरी थोड़ी सी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. क्या है आर्टिकल में दिया हुआ? इंडियाज कोल इंपोर्ट चैलेंज एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज. सो देयर इज एन
challenge in import of the coal, and because there's an electricity shortage in the India, and there was huge shortage in previous years. That is why this article has talked about taking that context. And then what is the challenge, what is the issue? पढ़ते हैं. India has been facing electricity shortage due to increasing electricity demand. तो electricity shortage क्यों है? Increase in demand एक point, and India has been facing electricity shortage and unpredictable weather pattern. तो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है बढ़ गई है, और मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टेज है वो हो गया बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड देयर इज अ अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न. While a shortage of domestic thermal coal is often blamed, the real challenge lies in insufficient logistics to move coal to power plants. समझ रहे हो कि कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है थ्रू कोल, दैट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक थर्मल कोल. तो थर्मल कोल जो है डोमेस्टिक अपने यहाँ जो इंडिया में उसकी कमी है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आ रहा है. लेकिन आर्टिकल में जो राइटर ने पॉइंट आउट किया है, मेन रीजन इज दैट लॉजिस्टिक चैलेंज. लॉजिस्टिक चैलेंज क्या? लॉजिस्टिक चैलेंज जो कोल को मूव करता है पावर प्लांट्स को, इनसफिशिएंट लॉजिस्टिक टू मूव कोल टू पावर प्लांट्स. तो जहाँ भी सोर्स है कोल का, वहाँ से पावर प्लांट में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो लॉजिस्टिकल इशू है, मतलब ट्रांसपोर्ट इशू है कि ले जाना ले आना, उसको ट्रांसपोर्ट करना कोल को, दैट इज द मेन चैलेंज. तो ये आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है. लॉजिस्टिक्स एंड डोमेस्टिक कोल. डिस्पाइट हैविंग लार्ज कोल रिजर्व्स, इंडिया हैज लार्ज कोल रिजर्व्स. इसके बावजूद भी द चैलेंज इज नॉट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक थर्मल कोल. तो कह रहा है प्रॉब्लम जो है, द चैलेंज इज नॉट अबाउट अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी बहुत है, प्रॉब्लम लॉजिस्टिक का है, बट रादर द लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेड टू पावर प्लांट. In August 2023, electricity shortage was only 0.55% of demand, yet 0.6 million tons of domestic coal could have addressed this, but it could not. There was availability of huge million tons of thermal power plants, thermal coals, but it was not properly used because of logistical challenge to move the coal to the thermal power plants. Imports and alternative sources. तो बोल रहा है कि imports कैसे solution हो सकता है, alternative sources क्या है? The widespread belief that imports are the only alternative to domestic coal during shortage is misconception. तो import is not needed. Import ही एक solution हो सकता है. This is a misconception. While some imports may be required, it is essential to determine the amount and for which coal plants required. ठीक है. So बोल रहा है कि this writer in the article has said that import cannot be a proper solution. अपने पास ऑलरेडी बहुत सारा रिजर्व है, अगर उसका सही से यूज किया जा सके लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे करके, तो वी हैव इनफ कोल रिजर्व टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी. जनरेशन एंड लोकेशन. देन अनदर पॉइंट विच हियर द आर्टिकल हैज टॉक्ड अबाउट द जनरेशन एंड लोकेशन. व्हाट इज दैट? नॉट ऑल पावर प्लांट्स फेस कोल शॉर्टेज इक्वली. पिटहेड प्लांट्स सिचुएटेड क्लोज टू माइंस. तो पिटहेड प्लांट्स क्या है? जो कोल माइंस के पास में सिचुएटेड डू नॉट फेस कोल शॉर्टेजेस. शॉर्टर डिस्टेंसेस टू ट्रांसपोर्ट कोल टू दीज प्लांट्स मेक देम लेस रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स. तो जो पिटहेड प्लांट्स हैं जो कि बहुत कोल प्रोड्यूसिंग माइंस के पास में है, वो ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं. अदर प्लांट्स लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम माइंस एंड जनरेटिंग लेस पावर आर मोर लाइकली टू फेस शॉर्टेज, में नीड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज. तो जो पावर प्लांट्स कोल जनरेटिंग माइंस के पास में है, उनको लॉजिस्टिक जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है. जो दूर है उनके लिए सोल्यूशन ऑल्टरनेटिव ढूंढने की जरूरत है. इन समरी, द डिस्कोर्स अराउंड कोल शॉर्टेज इन इंडिया रिक्वायर्स करेक्शन. तो जो कोल शॉर्टेज है दैट रिक्वायर्स करेक्शन. हाउ? द फोकस शुड बी इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक्स, क्योंकि प्रॉब्लम ही लॉजिस्टिक्स है, तो लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा. एंड मूव डोमेस्टिक कोल टू पावर प्लांट्स एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज रादर देन इंपोर्ट्स. सो इंपोर्ट्स पे ध्यान नहीं देना है. रेगुलेटरी कमीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइज मस्ट वर्क टुगेदर. तो रेगुलेटरी जो कमीशंस हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव टू वर्क टुगेदर टू इंश्योर कोल बेस्ड प्लांट्स आर अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कोल शॉर्टेज एंड आइडेंटिफाई द चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव टू ब्रिज द गैप. तो चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, इंपोर्ट पे रिलाई ऑन नहीं करना है, लॉजिस्टिक पे इंप्रूव करना है. दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर आर्टिकल. तो इस तरीके से आप भी सोचना चाहिए कि समरी अगर आपको किसी आर्टिकल का बनाना हो तो कैसे बनाना है. अदर बहुत सारे एग्जाम जैसे CAPF है उसमें, और आपका इवन एस्से है, उसमें बहुत सारा ये पॉइंट्स आप आर्टिकल्स में अपने यूज़ कर सकते हो, अपने एस्से में यूज़ कर सकते हो. CAPF में प्रिसी राइटिंग पूछता है, समरी पूछता है, रीडिंग कॉम्पिटिशन आता है. ऑल दीज आर्टिकल्स इफ यू आर रीडिंग केयरफुली विल हेल्प यू टू डेवलप द पावर ऑफ
रीडिंग कॉम्प्रेंशन एज वेल एज प्रिस से अगर कुछ अदर एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हो, एससे में बहुत सारा पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। क्वेश्चन भी यूपीएससी इन एरिया से पूछता है। लेट्स सी द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक बाय लुकिंग एट सम ऑफ द previous year question papers or some of the expected questions which can come from this topic, which I remind you to do, but I'm doing it for you so that you can develop this understanding that what to expect from particular article. Let's look at the questions. तो पहला क्वेश्चन है, the coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. कुछ स्टेटमेंट दिए हैं तो पूछा हुआ करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड एंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, तो वन ओनली इज द ऑप्शन। और हम एक्सप्लेनेशन भी आपका दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में, और ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ मैं, दिस इज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2023 क्वेश्चन, तो यू कैन अंडरस्टैंड द रेलेवेंस। India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. Statement 2, uranium enriched to extent of the at least 50% is required. तो अगर यहाँ यूरेनियम के बारे, आर्टिकल कोल के बारे में था और यूपीएससी यूरेनियम और कोल के बारे में पूछा हुआ था, अगेन दिस काइंड ऑफ आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट, अ प्रॉबल एरिया फॉर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्या है, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू यू कैन रीड एंड सी व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आई हैव shown you this article particularly so that you can understand the relevance. Article 3 है जो the countdown to pandemic treaty. Here that article, this particular article, I could not find much further, much content to be focused from the article, this article which has come up in the news. बट जो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है वो है पैंडेमिक ट्रीटी। तो पैंडेमिक ट्रीटी पहले आया हुआ है, WHO क्या है, पैंडेमिक ट्रीटी क्या है, उसके वेरियस प्रोविजंस क्या है, दैट वी हैव टू लुक एट। आर्टिकल इज नॉट दैट रेलिवेंट, यू कैन ऑल टुगेदर स्किप रीडिंग द आर्टिकल, बट ये जो आर्टिकल है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, चलो आप समरी में पढ़ना चाहते हैं तो समरी भी देख सकते हो, आई हैव गिवन यू लाइक नो इन शॉर्टर फॉर्म ऑफ दी, जस्ट जो आर्टिकल है आया हुआ है इन समरी फॉर्म कि समझना कैसे है, दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन। द कॉल फॉर पैंडेमिक ट्रीटी एंड करंट नेगोशिएशन, की फीचर्स ऑफ WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट, कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं पैंडेमिक ट्रीटी में, ये सब इसमें इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। व्हाट आई वांटेड यू टू look at is this question, and through this question we will look at some of the further and some of the content. Look at this question, what are the rationale behind the need for a pandemic treaty? तो यहाँ पे आपको पैंडेमिक ट्रीटी क्या है ये पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअल रीडिंग और कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, एंड दैट इज अबाउट, यू कैन राइट अ पैराग्राफ ऑफ लाइक 150 वर्ड का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको पता है कि अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन होता है, आई होप बाय नाउ यू नो इफ द क्वेश्चन इज 150 वर्ड्स, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन कितने वर्ड्स में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर 150 वर्ड का है, 150 वर्ड का क्वेश्चन है, तो राइट द बॉडी इन 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है, एंड राइट द इंट्रोडक्शन इनटू 25 to 30 वर्ड्स, एंड राइट कंक्लूजन इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स, ठीक है। सो दिस शुड बी योर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जो आपका A4 शीट होती है, ठीक है, जो A4 शीट है उस पर आप ऑलमोस्ट, अगर आपकी हैंड राइटिंग जो आपका वो है फॉन्ट है, नॉर्मल फॉन्ट है, बहुत छोटा है बहुत बड़ा नहीं है, जो नॉर्मल है जो होना चाहिए, एक A4 शीट पे आपके ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन है तो आपका पूरा एक शीट ये कंप्लीट होना चाहिए और अनदर हाफ शीट, सो दिस विल बी योर 150 वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 150 वर्ड्स में, ठीक है। नाउ लुक एट व्हाट इज पैंडेमिक ट्रीटी। पैंडेमिक ट्रीटी में किसके बारे में बात की गई थी, डिसीज एक्स क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्ज्ड कंट्रीज टू साइन द पैंडेमिक ट्रीटी टू फाइट द ग्लोब्स डिसीज एक्स। डिसीज एक्स क्या है, कोई भी डिसीज जो अभी तक आई नहीं है और ना ही हम उसको अभी तक प्रेडिक्ट किए हैं, बट दैट डिसीज माइट कम, जो देखा नहीं गया, जैसे पैंडेमिक कोविड-19 हमें नहीं पता था सच काइंड ऑफ पैंडेमिक माइट कम, सच काइंड ऑफ डिसीज माइट कम।
तो इसी तरीके से डिसीज एक्स उसको नाम दिया, जो अननोन डिजीज विच कैन कम, विच कैन बी बिकम अ पैंडेमिक, उसको डिसीज एक्स बोल दिया है, ठीक है। तो पैंडेमिक ट्रीटी क्या है, पैंडेमिक ट्रीटी देख लेते हैं। सो दिस इज हाउ कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो कि सीधा आप पैंडेमिक ट्रीटी से नहीं स्टार्ट करो, आप लिख सकते हो डिसीज एक्स के बारे में, WHO टॉक्ड अबाउट डिसीज एक्स इन इस पैंडेमिक ट्रीटी, एंड देन यू कैन राइट कॉन्सेप्ट that is your pandemic treaty. Pandemic treaty, it's a global pandemic treaty to better prepare for and respond to a future pandemic. After COVID-19 pandemic, the WHO's world member states started making plans for a global accord to better prepare the world for future pandemics. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, 2023 में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, is to prevent pandemic, store lives, reduce sickness burden and protect livelihoods through strengthening the arena's capacity for preventing, preparing for and responding to and healing of health system through pandemics. ठीक है, so this is about pandemic treaty. Potential benefits of the treaty and challenges you must also know. तो अगर critically analyze करने के लिए बोल जाए तो treaty के benefits क्या हैं, result in increase early detection, awareness, and they ensure more equitable access to health care. And challenge क्या है, रीचिंग कॉन्सेंसस इस बिग इशू। जब भी WHO की बात करें, जब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जब भी WTO वगैरह की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंसेंसस का ही होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वेयर बिग थिंग्स आर टेकन अप, इंटरनेशनल इशूज आर टेकन अप, सबसे बड़ा इशू जो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, दैट इज अबाउट बिल्डिंग कंसेंसस। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस जो आप लिख सकते हो, ठीक है। अनदर चैलेंज क्या हो सकता है, इट वॉज फाउंड ensuring that national governments fulfill their commitments under the treaty is a concern. ये भी प्रॉब्लम है कि नेशनल गवर्नमेंट्स कैसे फुलफिल करेंगे। द ट्रीटी कुड प्रॉब्ली अफेक्ट नेशनल सॉवरेनिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सिक्योरिंग एडिक्वेट फंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। WHO के बारे में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, यू कैन just have a look at, because we did see WHO, but I assume that you know about WHO. It is specialized agency of United Nations. WHO is a specialized agency of United Nations. कब फाउंड हुआ था, 1948 में। It has 194 members. Okay, 150 country offices, 6 regional offices. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर इन जेनेवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन, अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट्स दिस यू हैव टू राइट, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO in providing global health security during COVID-19 pandemic. So this I gave you one question and we saw the approach and the answer. Now you have to write this question and you can write your answer and on a soft copy, and you can comment below this video and I'll check the answer. I'll reply myself whether you have written the answer rightly or not, or what other improvements are required. तो आंसर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे जाके इस हैंडआउट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप ये इसका क्वेश्चन का आंसर लिख करके टेलीग्राम जो यूट्यूब का चैनल है जो DNA का चाहता है उसके नीचे आप कमेंट करो। आई माई सेल्फ विल सी द आंसर एंड वी विल रिप्लाई व्हाट कुड बी द बेटर वे टू राइट द आंसर, और हाउ मच मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट by attempting that particular question the way you have done. Okay, so yes, this is all about today's daily newspaper analysis. Keep reading, keep revising, keep practicing. I'll see you in another session of daily newspaper analysis. All the best. Tathastu.